International Women's Day is a time to reflect on the progress made, call for change, and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of their communities and countries. The theme, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, focuses on innovative ways in which we can advance gender equality and the empowerment of women, particularly in the areas of social protection systems, access to public services, and sustainable infrastructure. Vishwa Yuva Kendra has organized various activities across the nation in collaboration with partner organizations. There was an online panel discussion on the said theme on 8th March 2022 also. Let us see the proceeding of the whole event. A very warm welcome to all of us on this occasion of International Women's Day. I would like to start with a small quote. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है. Before the commencement of today's events, I would like to express our sincere thanks to our chairman, Shri Rajat Kumar Narayan sir, our managing trustee, Shri Shishir Bajaj sir, and all other board members who have always encouraged us and provided us with such an ambitious place to pursue our goals. We are thankful to all of them. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all on the International Women's Day 2022. On behalf of Vishwa Yuva Kendra, I cordially welcome our chief guest, Dr. Kiran Bedi, former Lieutenant Governor, Puducherry, our honorable speakers, Padma Shri Dr. Shama Maitre, who is a director of Chinmaya Organization for Rural Development, Dr. Ranjana Kumari, who is the director of Center for Social Research, and Ms. Chetna Sinha, who is founder, chairperson of Mandeshi Bank. I would like to welcome our partner organizations and institutions across the nation and our lovely participants who have joined us through Zoom and also those who have joined us through our official Facebook page. International Women's Day is a time to reflect on the progress made, to call for change, and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary roles in the history of their communities and countries. The theme, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, focuses on innovative ways in which we can advance gender equality and the empowerment of women, particularly in the areas of social protection system, access to public services, and sustainable infrastructure. International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating gender parity. Today, we all have gathered here to celebrate the achievements of women who have emerged not only as successful leaders, but have set the benchmark for all of us to choose the challenges and break the stereotypes for leading an inspirational life. Before we proceed further to hear from our honorable speakers, I would like to invite my colleague, Shri Ajit Kumar Rai sir, to kindly share a glimpse of history of Vishwa Yuva Kendra and the activities initiated by Vishwa Yuva Kendra on the occasion of International Women's Day. Thank you so much. माननीय डॉक्टर किरण बेदी जी, डॉक्टर क्षमा मित्र मैम, डॉक्टर रंजना जी, चेतना सिन्हा जी और मेरे प्यारे अपने दूर दराज के क्षेत्रों से सम्मिलित इस कार्यक्रम में मेरे प्यारे प्रतिभागियों,
सबसे पहले तो विश्व केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं छोटा सा एक तरह से कहें विश्व केंद्र के बारे में, इसके इतिहास को आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, हमने सुना है मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली थी, और उन्होंने बोला था कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन खूबी इस बात की है कि आप हमेशा चलते रहो। मुझे लग रहा है कि ये वाक्य शायद हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए और हर संस्था के लिए शायद ये मुख्य बात है। और इसी बात को लेते हुए, इसी बात को जेहन में रखते हुए विश्व युवा केंद्र ने शायद अपने इस जर्नी की शुरुआत की, और आज 2022 में विश्व युवा केंद्र के 61 ईयर्स हो गए। तो एक तरह से हमने अपनी डायमंड जुबली 2021 में की, चूंकि विश्व युवा केंद्र की स्थापना 1961 में देश के कुछ अग्रणी महापुरुषों द्वारा किया गया है, जिसमें अगर एक नाम लें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अग्रणी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर मैं विश्व युवा केंद्र के पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बात करूं, तो हमारे इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो माननीय मोरारजी देसाई जी थे। बोर्ड में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री रामकृष्ण बजाज जी जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, इसके साथ साथ नवल एच टाटा जी, वीरेन जे शाह जी और रविंद्र वर्मा जी जैसी व्यक्तित्व इस विश्व केंद्र को उन्होंने अपने छोटे मोटे अनुभवों से, अपने कार्यक्रमों से सुसज्जित और सुशोभित किया है। वर्तमान में जैसा हमारे कलीग अपूर्वा ने बताया, श्री रजत कुमार नारायण जी इसके चेयरमैन हैं, और श्री शिशिर बजाज जी जो एक रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस विश्व केंद्र के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। अगर विश्व केंद्र के हम क्रियाविधि के बारे में बात करें तो हमारा दो मेन इस पे फोकस जाता है। एक तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, और दूसरा जो हमारा काम है वो सोशल इश्यूज पे बराबर लोगों को अवेयर करना है। इसको हम कैसे करते हैं, अगर इसकी बात करें तो हम दो मेन अपने सेगमेंट को लेकर चलते हैं। दो हमारे मेन टारगेट बेनिफिशियरीज को बोले, या जो ऑडियंस या हमारे लोग हैं जिनके माध्यम से हम दूर दूर तक पहुंचते हैं, वो है युवा, जो कि विश्व केंद्र नाम है, और दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। और दोनों चूंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आबादी, करीब करीब हम सबसे युवा देश हैं आज की अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों के गांव-गांव में गए हुए हैं, बसे हुए हैं, उनकी पहुंच है, इसलिए हम इनके माध्यम से अपने कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। इस तरह हमारे ये कार्यक्रम रहे। चूंकि विश्व केंद्र हमेशा पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में विश्वास करता है, और आज तक जितने कार्यक्रम हमारे हुए हैं भूत में, वो सारे आपसी संस्थाओं के आपसी मेल जोल में हमने कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो पूरे भारत में हो या भारत के बाहर भी हो। अभी अगर मुझे इस बात को आपसे शेयर करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे हमने 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, करीब 20 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 50 के करीब में प्रोग्राम किए हैं, वो 18 स्टेट में, जिसमें करीब करीब 8,000 के करीब में प्रतिभागी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस पे हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा है कि उन सारी संस्थाओं के साथ हमने मिलकर क्या कार्यक्रम रखे हैं उसके बारे में छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री हैं, जिनको 3 हिस्सों में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ, और साथ साथ में आज का दिन ये जानने का दिन है कि दुनिया की महिलाओं के साथ, उनके साथ हर तरह की परेशानियां, क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण उसका रहा है वो महिलाओं को जो जेंडर बायस होता है, जो कि हमारे दिमाग में एक सामाजिक तौर पर बात बैठ गई है, और खास तौर से परिवार में जब बेटा बेटी बड़े होते हैं तो वो बात बैठ जाती है कि, या बैठा दी जाती
कि लड़कियां कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यादा तकनीकी शिक्षा के काबिल नहीं है, और इसकी वजह से ये लड़कियों के अंदर जो समस्याएं महिलाओं के अंदर आज किस तरह से ये सारे हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारा देश दुनिया के पैमाने पर पीछे छूट जाता है, क्योंकि हम तमाम महिलाओं की जो ताकत है, शक्ति है, उसको पहचानते नहीं है, महिलाओं के स्किल को हम डेवलप नहीं करते हैं, उनको हम एनेबल नहीं करते हैं। तो जो आज का बड़ा सुंदर विषय आपने रखा है कि किस तरह से हम महिलाओं को विकास की गति के साथ शामिल करें और उसका लाभ हमें मिल सके, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है आज के लिए। और आज के महिला दिवस के दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तभी हम थोड़ी देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स में थे, और किरण बेदी जी को याद होगा, अगर वो हमारे साथ अभी बैठी हैं, कि सबसे पहले महिलाओं की पुलिस की ट्रेनिंग, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए हम लोगों ने आज से लगभग, जब किरण बेदी जी डीसीपी थी दिल्ली की, जमाने में शुरू की थी, और वो स्वयं उस ट्रेनिंग में हमारे साथ आई थी, और काफी वो यहाँ सूरजकुंड में वो ट्रेनिंग हुई थी। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जरूर वो उस बारे में बात करेंगी। और आज का दिन वो दिन है कि पुलिस के हेडक्वार्टर में पुलिस का कमिश्नर देश भर, दिल्ली भर की महिलाओं के साथ जुड़ा, और उन्होंने अपनी बात को वहां पर बताया। बता दो में जाकर के आप किसी भी समय कोई भी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार, हिंसा के बारे में रिपोर्ट कर सकती हैं। तो वो इस यहाँ तक अब हमारा देश पहुंच रहा है, या कह लीजिए कि हमारी राजधानी पहुंच रही है, जिसको कि कहा जाता है कि बड़ी ये जगह खतरनाक है, यहाँ महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के साथ बड़ी यहाँ पर हर तरह की हिंसा हो सकती है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो अब वो पूरा माहौल बदल रहा है, और उस माहौल को बदलने में हम सब लोग मिलकर के अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आज के चर्चा के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं में आज क्या कमी रह गई है। कमी रह गई है, शिक्षा में भी काफी आगे आ रही है महिलाएं, ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा में अब महिलाओं का वही हाल है जो आज से 20 साल पहले था, 25-30 साल पहले था, या आजादी की पूर्व संध्या पर था। शिक्षा में महिलाएं काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं। ये जरूर है कि उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि हम सोचते हैं कि बढ़ जाएंगी। तो 3 चीजों को मैं समझती हूँ, इस समय अगर महिलाओं के साथ किया जाए तो उनका पूरा का पूरा योगदान हम अपनी अर्थव्यवस्था में ले सकते हैं, और साथ साथ में महिला के सशक्तिकरण की तरफ ये सबसे बड़ा कदम होगा। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात, शिक्षा के अलावा अगर शिक्षा में महिलाएं हैं तो स्किल निर्माण। दुर्भाग्यवश ये होता है कि बहुत सारी कम महिलाएं उसमें शामिल हो पा रही हैं। तो महिलाओं को एनेबल करना हर तरह के स्किल्स से, और ये हुनर पैदा करने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, टेक्नोलॉजी। सिर्फ कंप्यूटर सीखना जरूरी नहीं है, अब तो सोशल मीडिया में मार्केटिंग स्किल बहुत जरूरी है। तो जो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल की ट्रेनिंग की, उसका भी बड़ा लाभ हुआ है महिलाओं को। तो तरह तरह के नए नए इनोवेटिव एरियाज जहां पर की महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज महिला को कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। आने वाले समय में तो कुछ भी नहीं होगा। कोविड ने हमें ये बात समझा दी है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी तरह से हमारी पूरी पॉपुलेशन को ओरिएंट करना पड़ेगा, और साथ साथ में महिलाओं को तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जरूरत है। गांव गांव, घर घर में बैठी हुई बच्ची को आज टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत है, कैसे वो इस पूरी इंटरनेट को इस्तेमाल करके, पूरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मार्केट से जुड़ सकती है, क्रेडिट अवेल कर सकती है, अपने छोटे एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य में कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकती है। तो ये मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि आप महिला को टेक्नोलॉजी से, स्किल से जोड़ें और टेक्नोलॉजी से जोड़ें। तीसरी बात क्या है कि इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर अगर महिलाएं एजुकेटेड हैं, उनके अंदर स्किल पैदा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हैं, तो फिर एक इनोवेशन जो कि नए नए तरह का सोच, कि ये जरूरी नहीं है कि महिला वही काम करे ट्रेडिशनली जो वो करती चली आई है, उसमें लाभ नहीं है, उसमें उसको आमदनी नहीं है, उसमें उसको मुनाफा नहीं है, और फिर भी लोग उसी में उसको महिलाओं को झोंकते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। महिलाओं को स्वयं भी इनोवेटिव होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हर समय हम इंतजार करें महिला होने के नाते कि आप हमें हाथ पकड़ के चलाइए तब हम चल पाएंगे। नहीं, आप मौका दीजिए, अवसर। ये जो सबसे जरूरी चीज है कि अवसर मिलना चाहिए। अगर अवसर मिलता है महिलाओं को तो फिर वो स्वयं चलने लग जाती हैं और स्वयं अपना काम करती हैं। और आखिरी बात,
जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मार्केट से जुड़ना है। आप कोई भी आर्थिक काम कर रहे हैं, कोई भी आप अपने लिए किसी भी तरह का कोई भी स्किल आपके अंदर है और आप एक एंटरप्राइज शुरू करते हैं, तो आप अगर मार्केट से नहीं जुड़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि वो चीज कैसे मार्केट में आएगी और किस तरह से आप उसको, तो फिर वो आर्थिक जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है वो अधूरी रह जाती है। तो जो लोग भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, और आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट काम कर रहे हैं उनको ये 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि पेशा शिक्षा के कोई ना तो कोई सुविधा मिलेगी ना तो कोई सुरक्षा मिलेगी, शिक्षा जरूरी है। उसके बाद फिर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही जुड़ना है कि नहीं। अभी बहुत से पेरेंट्स को मैं देखती हूँ आजकल बोल देते हैं, अच्छे यंग पेरेंट बोलते नहीं हमारा बच्चा बड़ी अच्छी जानता है कंप्यूटर कैसे चलाना है, वो फोन पे सब कुछ कर लेता है। पेरेंट्स बड़े प्राउड है इस बात के लिए कि हमारा बच्चा फोन पे सब कुछ है। यूथ लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां फिर भी थोड़ा बचती हैं। यूथ में भी लड़के सब कुछ कर लेते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे शहर से स्वयं आती हूँ और मुझे लगता है छोटे शहरों में और गाँव में वहाँ सब कुछ जरूरी है कर सिखाना के लिए। तो ये 5 बातें मुट्ठी बांध लीजिए कि हमें शिक्षा से जुड़ना है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मार्केट, और सबसे ज्यादा उसके बाद जरूरी है वो है क्रेडिट। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, दुनिया भर की आज ही फिर दूसरे प्रोग्राम में इसके बाद मुझे जहां बात करनी है वो ये कि जो औरतों को अपने काम को करने के लिए जो भी साधन चाहिए, कुछ तो रुपया पैसा लगेगा तब आप अपना काम शुरू करेंगे, और उसके लिए एक इजी क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगला जो फेज है हमारे पूरे एम्पावरमेंट के काम का, अभी तक तो हम सरकार देखो लोग महिला आंदोलन की तरफ से भी हम लोग रहे, सरकार ये नीति बना दे, ये कानून बना दे, हमें ये इस तरह से सुरक्षा दे दे, हमारी पुलिस की व्यवस्था कर दे, हर चीज हम सरकार से उम्मीद करते रहे। लेकिन अब हमें समाज देखो बनना पड़ेगा। एक ये मोड़ है हमारे आंदोलन का भी कि समाज देखो बनने में हमें समाज की तरफ देख करके देखना पड़ेगा। हर महिला को ये तय करना पड़ेगा कि हमें ये 5 चीजें करके और हमें मुट्ठी बांधनी है अपनी, और फिर उस मुट्ठी की ताकत को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो उस मुट्ठी की ताकत से आप स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगी, खाली सिर्फ महिलाओं का लाभ नहीं होगा, पूरे परिवार का लाभ होगा, पूरी कम्युनिटी का लाभ होगा, समाज का होगा, अंततः हमारे देश का लाभ होगा कि हर महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक क्रिएटिव ढंग से, एक जिसको कहते हैं कि अपनी तरह से एक समाज को योगदान देने की एक शक्ति रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो यही आने अब कुछ समाधान में सिर्फ 2 बातों की तरफ इंगित करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो बात है कि ये जो एनेबल विमेन टू स्टैंड ऑन देयर हर ओन फीट, ये हमारा सबसे बड़ा इस समय का स्लोगन होना चाहिए कि हमको हर औरत को अपने पैर पर खड़ा होने की ताकत की जरूरत है। वो खड़ी हो जाएगी अपने आप, वो अपने आप सब कुछ अपने लिए कर सकती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? महिलाओं को हमें सुरक्षित करना है, महिलाओं को हमें प्रोटेक्ट करना है। ये एक बड़ा पेट्रियार्कल सोच का ढांचा है कि हम कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो कौन हमें प्रोटेक्ट कर लेगा? कोई नहीं कर लेगा। कितनी बड़ी व्यवस्था आप बना लीजिए, महिलाएं प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हिंसा घर के अंदर भी है, वहां कौन प्रोटेक्ट करेगा? हिंसा घर से निकलने के बाद दरवाजे पर भी है, हिंसा सड़क पर भी है, हिंसा काम करने की जगह पर भी है। तो ये जो सारा माहौल है, इसमें जरूरी है कि महिलाओं को एनेबल बनाया जाए, तभी उनका एम्पावरमेंट होगा, वो स्वयं अपने आप को एम्पावर करेंगी। तो ये जो उसके बाद जो 2-3 बातें मैं आपसे बस सिर्फ छोटी उसमें कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमी में अभी जो सबसे बड़ा हम लोग को एक सामूहिक धक्का लगा है हमारे दिमाग को, मन को, मानसिकता को, हमारे शरीर को, वो रहा है इस महामारी का। और इस महामारी ने एक बात खोल के हमारे सामने रख दी है कि हम तैयार नहीं थे। एक देश के तौर पर हम तैयार नहीं थे, लोगों के तौर पे नहीं तैयार थे। तो फिर हम लोगों जैसे लोगों ने क्या किया? यूथ को मोबिलाइज किया, यूथ चैंपियंस बनाए, और फिर वो लड़के लड़कियां यूथ चैंपियंस गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमे। उन्होंने कहा नहीं, आपको हर हालत में कोविड का वैक्सीनेशन लेना है। अगर आप किसी ने एक ले लिया तो दूसरा लेने नहीं जा रहा। कुछ तमाम तरह की उसमें तो यूथ ने आगे बढ़ के बहुत काम किया, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत काम किया, और उन सबों का सहयोग करने के लिए हमारी जैसी और आप जैसी संस्थाएं खड़ी हुई जिन्होंने उनसे सहयोग किया। दूसरा मेजर चैलेंज है औरत की
एम्पावरमेंट का, वो उसकी हेल्थ का चैलेंज है। देश के बस ये हेल्थ का चैलेंज जब तक, क्योंकि देखिए शुरू होता है बचपन से, एक मैल्शन चाइल्ड और खास गर्ल चाइल्ड होती है, वो शुरू होती है और उसके जो बड़े होने तक, आगे आने तक जो हर तरह से उनको प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाद में आ जाती है, और हेल्थ इशू के साथ मेंटल हेल्थ की इशू महिलाओं के साथ आ जाती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य। और इस कोविड में बहुत आसानी से आप कहीं भी दूसरी तीसरी चौथी अपनी दोस्त से बात करेंगे, लड़के भी लड़कियां भी, फ्रेंड से बात करिए, तो यू विल नो दैट सो मेनी पीपल हैव सफर्ड थ्रू मेंटल हेल्थ चैलेंज, because sitting at home, nobody is there to talk to, and also you are disconnected from your peer group. Only parents are around, they've been telling you things to do and all that. So बहुत कुछ ऐसा हुआ इस बीच में कि you are not so as a health challenge, other than the physical health of women, you have to pay attention to mental health of women. It's extremely important, because if you have broken mental health, then it's worth, you can't do anything, you cannot really contribute anyway. So I would say that other than economic empowerment, we have to empower women in terms of her health also. That is extremely important. And here I think two entry points are very important. One is childhood. So we have to ensure that every child is born and brought up healthy with full nutrition, and because that's the health which continues and takes you through the life. And second time when in the girl's life health issue comes up is when she is in the teenage, menstrual age. When that age comes, a lot of people don't want to talk about it. लोग बात ही नहीं करते हैं, लोग कुछ उसको सहयोग और सहारा भी नहीं देते लड़कियों को। तो अगर सचमुच हमें एम्पावरमेंट की तरफ चलना है और महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ना है, तो इन दो एंट्री पॉइंट पर हमें महिलाओं के स्वास्थ्य की बहुत गंभीर चिंता करके, गंभीर सोच के साथ गंभीर योजनाएं बनाने की आज जरूरत है। तो मैं अभी के आज के अपनी बातचीत के लिए दो ही बातें सामने मैंने रखी है। एक तो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, उसके लिए 5 तंत्र के जो हमने आपको मंत्र दिया वो जरूरी है, और दूसरी बात जो जरूरी है वो महिलाओं के हेल्थ के बारे में। और बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हिंसा का मुद्दा है और तमाम और मुद्दे, लेकिन आज सेलिब्रेशन का दिन है, तो आज सिर्फ दुखी होने वाली बात नहीं करनी है। आज हमें आगे बढ़ने, ताकत बनाने और अपने आप को समाज के सामने और देश के सामने एक ताकतवर शक्ति के रूप में पेश करने की जरूरत है। धन्यवाद। सबको आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत शुभकामनाएं। I'm very happy with the Vishwa Yuva Kendra for having organized this webinar today for all of us to deliberate. I have been given the task to talk on women's participation to make a very conscious and progressive society. So there is no doubt that societies are enriched and enhanced when women are seen and treated as equals. Women add a valuable dimension and offer a new perspective to any dialogue, discussion, or action. Their presence gives a very good group dynamic, which is different from all other organized. With equal knowledge, opportunity, exposure, and experience, women are demonstrating their competency and are building equal status and power. They're exercising their rights and duties, and in no measure are they any less than that of men. Providing women and girls equal access to quality education, healthcare, decent work, ensuring their representation and active participation in political and economic decision-making processes will remove several barriers in their path. It will fuel sustainable development and benefit societies at large. But to achieve this, we are a very long way. And the most important thing that keeps us away from this whole achievement is the gender blindness that is seen in families, in societies, in systems and structures.
Hence, it is crucial to explore consciously both the hidden and visible factors that make it so. So when we examine that what makes this gender inequality happen, it happens in our brain, in our minds, in our feeling, in our thoughts, in the way we view world and of men and women, and how we all then form our own norms, co-beliefs, attitudes, and perceptions about women, which in turn actually unconsciously lead us to our gender biases and perceptions and the type of very kind of the things that we see which bring about eventually and reveal themselves in the visible discrimination behavior and actions that we see, and also the differential treatment of women. So it is important to note that this differential gender treatment, it creeps into the system very gradually and very effectively, in the sense that it also enters our policies, practices, and expectations. So once we understand this, beliefs and discriminative actions that are socially constructed and learned and upheld through values, legislation, and policies, we also realize that this learned societal constructed values and discrimination can be changed and can be dismantled by all of us. But to do this, we need conscious effort and deliberate attempts by each generation in different locations and populations and cultures to overcome the stereotypes and break the power dynamics. It is thus essential to delve into what is this power dynamics and how to also question it, challenge it, the gender power domains and relations, such as which are the power things that happen and why we have such a kind of gender discrimination. ज़्यादातर इसलिए होता है कि who does what and who has what and who decides and who has the privilege. So when we consider who does what, it is important to see the division of gender-based labor that occurs. क्योंकि जो काम हम करते हैं वो काम कैसा है, अगर छोटा है तो this brings about a lot of gender discrimination, and most of the work that is done by women is domestic chores and care of the sick, children and elderly at home. So this job is an unpaid job for which, instead of being recognized, she is actually put into a disempowerment position. और उसके बाद ये भी होता है कि women are mostly in low paid jobs, mostly in unorganized sector where there is no social protection, and being in an unorganized sector, they have no voice and they have no agency. So this is about the jobs of the women mostly that we see in all over our places. Another thing is that if you look at jobs, women are paid 24% less than men, mostly all over the world, even wherever we may be. Looking at women's participation in governance, in India, we have a very poor performance. Only 10.5% of our women are parliamentarians, and only 8.3% of women are in the legislative assemblies in our state. This is very important, that the economic power, empowerment of women, economic prosperity of women, women's leadership, and women's leadership in the democratic system is very important if we have to consider how we consciously consciously make a progressive impact on women's conditions in our country. So similarly, when we look at what I said about who does what, now we have to say who has what, मतलब किसके पास क्या है.
When you look at women generally, I'm going to talk only about one point, that women only have all over the country, 10% of women actually have land rights. So when they don't have land rights, they also don't have the power to make decisions. They do not have any community power in household as well as community decisions. And it also increases our inability to access credit. After we decide who does what, who has what, also who decides. Now both these two facts, कि किसके पास क्या है और कौन क्या करता है, affects the decision making power of the women. और इसके साथ ये भी है कि who makes the rules at home, who sets up relationships, who decides what who will do, as commonly say, who has the access to information and who has all the gender privileges. When you look at these conditions, you will see that most of this belongs to the men, and having this decision-making power for women is very low. And if we have to do anything about it, this power dominance that are intrinsically linked to gender equality need to be addressed systematically and deliberately. However, the long-term relationship of both men and women is reciprocal. Differences in roles is not the cause of inequality. It is the value and privilege placed upon these rules that lead to inequality. So women's role and contribution in the domestic forefront needs to be recognized, valued, and her burden shared, reduced and redistributed, giving her the space to make other choices, as well as providing opportunities to harness these choices. But we also see that many women have the spirit to negate the status quo and the energy to transform them, break new pathways, address root causes of discrimination. Women's insights, wisdom, nurturing abilities, vibrance and dynamism need to be harnessed and encouraged. Having said this, I want to now quote very good examples about what systemic changes can bring. And the most, we all know that if systemic changes are broad, then the implications and the effects are massive. One such systematic change that has happened in 1994, when we made reservations for women in the Panchayati Raj system, especially the reservation of women in the Gram Panchayat, really has brought about a revolution in rural India. And it is a massive change. It has occurred very slowly, but surely. The fact that women now are being elected as representatives, and the Panchayati Raj constitution allows all women to participate. It's not about only representative participation by elected representatives in governance. It is about everyone in the Gram Sabha participating. And so women are also participating very, very well. And they're showing their spirit, they're showing their insights, they're showing how they can change governance in many ways, and they're adding value for women and girls in ways that men do not think about, because the mandate of Panchayat usually is more about gross crude factors, whereas women deal with soft factors, such as the nutrition of the children at their home, whether there's water available or not, whether it's safe drinking water or not, where alcohol is being sold around their villages, are children getting into bad habits of tobacco. Things like that matter to women. So their policies and their interventions are very women-friendly, and it is important कि जो ये पंचायती राज का इंटरवेंशन है उसको जितना और हम मजबूत बना सके, उसे और मजबूत बनाएं.
or breaking through the system in villages where men are expected to be aggressive and to be in charge, and women submissive and docile has been a long path. हम लोग इसके साथ एसोसिएटेड 1994 से और आज तक धीरे धीरे चेंज देखा है, पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चेंज है कि दैट वी कुड नॉट इमेजिन कि क्या क्या औरतें कर सकती है। पर्यावरण की बात करो, सॉइल की सेफ्टी की बात करो, आप जल जंगल जमीन जंतु कुछ भी जीविका सब में औरतें बहुत अच्छी तरह जुड़ी है। और इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि 2 स्टेट्स ने, हमारे 2 प्रदेश, हमारे पूरे देश ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने हर ग्राम पंचायत में 2 दिन रखे हैं पूरे साल में जो महिला ग्राम सभा के दिवस है। ये केवल महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने किया है। महाराष्ट्र ने 2012 में किया था और हिमाचल प्रदेश ने 2015 में किया है। और इससे जो इश्यूज निकलते हैं, जिसपे बहुत अच्छी डेलिब्रेशंस होती है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज भी है, इसके सारे जो प्रस्ताव होते हैं वो ग्राम सभा में भी चले जाते हैं, से बहुत फर्क पड़ रहा है। और आज मैं जैसे आप सबके साथ बात कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हिमाचल प्रदेश के जहाँ कॉर्ड काम करता है, कम से कम 100 पंचायत में आज महिला ग्राम सभा चल रही है और चल चुकी भी है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। मेरे को जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं वो मुझे बहुत खुशी से भर रहे हैं और मैं आपकी पहले अपनी खुशी आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे इवेंट्स हमको बताते हैं कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो बहुत आगे जा सकती है। एक्चुअली इन्होंने ही हमारी इकोनॉमी को बहुत संभाल के रखा है और उनको बार बार नमन। और इन कुछ शब्दों के साथ और विश्व युवा केंद्र को मैं फिर से आज के दिवस के इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रभु करे, भगवान करे हम सब महिलाओं को बहुत आदर दे और उनके आगे बढ़ाए, क्योंकि जहां जहां महिलाओं की हम पूजा करते हैं वहां वहां भगवान भी रमनते हैं। हरि ओम, नमस्कार। नारी देवी नारी लक्ष्मी, नारी का सत्कार करो। नारी देश की शान कहावे, मत ना अत्याचार करो। बेटा सु बेटी भली, जय कुलवंती होए। बेटो तारे के घर तो बेटे तारे दोए। गांव के एक किस्से में बात आती है, जब महिला के पेट में बच्चा होता है, किसी जमाने की मैं बात कर रहा हूं, पता लगता है कि वो बेटी है तो भ्रूण हत्या करवा दी जाती थी। उसी के ऊपर मैंने ये इस गीत को लिखा। अरे नारी नर की खान जगत में, नारी गुण की खान जगत में, हर जग जननी कहलाती है। हर मात गर्भ में लड़की यारो, अब क्यों मारी जाती है। मात गर्भ में लड़की यारो, अब क्यों मारी जाती है। मात गर्भ में लड़की यारो, नारी ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, बहुत बड़े पुरुषों को। कौन कौन से नारी के, कौन से? राम लखनी भरत शत्रुघ्न, उनको माँ ने जन्म दिया। राम लखनी भरत शत्रुघ्न,
हरिश्चंद्र की तारा रानी, राजा हरिश्चंद्र की तारा रानी, हे काशी में बिक जाती है, फिर भी मात गर्भ में लड़की यारो अब क्यों मारी जाती है, मात गर्भ में लड़की यारो अब क्यों मारी जाती है, अब क्यों मारी जाती है भाई, अब क्यों मारी जाती है, अब तो मारी जाती है भाई, अब क्यों मारी जाती है, मात गर्भ में लड़की यारो अब क्यों मारी जाती है, मात गर्भ में लड़की यारो अब क्यों मारी जाती है। आज हम लोग क्यों मना रहे हैं विमेंस डे? इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लड़की और लड़के का जो की परवरिश है सभी घरों में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और मैं हकीकत बोल रही हूं क्योंकि अभी मेरे वेबिनार हो रहे हैं ऐसे कॉलेजेस में भी जहां के बड़े मॉडर्न कॉलेजेस समझे जाते हैं, और मैंने ऐसे एरियाज में भी जाके इन पर्सन विजिट्स किया है जो कि दूसरे एरियाज में भी। और लड़की, हर लड़की आज ये कह रही है मुझे मेरे मम्मी डैडी इक्वल क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने भाई के समान। वो लड़की में से पूछ रही है कि मुझे मेरे मम्मी डैडी क्यों नहीं पढ़ा रहे, और सुनती वो ये है हमेशा अपने मम्मी डैडी से, क्योंकि तुम पराया धन हो, तुमको पढ़ाएंगे तो तुमने दूसरे घर चले जाना है, लड़के को पढ़ाएंगे तो वो मेरे पास रहेगा और परिवार की परवरिश करेगा। तो लड़की बार बार ये सुनती आ रही कि तुम्हें पूरा पढ़ाएं या ऊपर पैसा धन क्यों लगाएं तुम्हारे पास, और या पढ़ाएं भी तो उसके मन में ये डाल दिया जाता है कि एक दिन तुमने चले जाना है, तुम हमारी परमानेंट नहीं हो। तो लड़की, पढ़ी लिखी लड़की के दिमाग में भी ये आ रहा है कि मेरे मम्मी डैडी मुझे उतना नहीं प्यार करते जितना मेरे भाई को प्यार करते हैं। प्यार करते होंगे लेकिन डिपेंड करते हैं या समझते नहीं, बराबर समझते नहीं, वैल्यूबल समझते नहीं है वैल्यूबल। तो इसलिए विमेंस डे मनाया जा रहा है ताकि बार बार मैसेज दिया जाए कि हर समाज में जब तक पुरुष और नारी मिलकर एक काबिल नहीं बनेंगे, समाज कमजोर रहेगा। समाज को अगर हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात, अगर हमने अपने समाज को आत्मनिर्भर करना है, हमको अपनी बेटियों और बेटों को, लड़कियों और लड़कों को बराबर शिक्षित करना है, बराबर बहादुर बनाना है, बल्कि लड़की को बहादुर और लड़के को जिम्मेवार बनाना है। लड़के को जिम्मेवारी चाहिए क्योंकि लड़का तो जन्म से बहादुर होता है। भगवान ने उसको ऐसे मानसिक शारीरिक ताकत दी है कि वो उसमें है ताकत। जब लड़की में होती है, इसीलिए लड़की लड़के के बराबर पतली होती है, उसका ढांचा भी छोटा होता है, कद में भी लड़के के बराबर नहीं होती है। तो पढ़ाई, वो बायोलॉजिकली वो कमजोर, वो उतनी ताकत, आफ्टर ऑल जब अलमारी उठानी होती तो कौन उठाता है? भाई उठाता है कि बहन? जब अलमारी उठाई नहीं पड़ती है या ट्रंक उठाना पड़ता है सिर पे तो कौन उठाता है? भाई के बहन? भाई, क्योंकि कुदरत ने उसको शारीरिक ताकत ज्यादा दी है। लड़की को शारीरिक ताकत उतनी नहीं दी है जब तक मैरी कॉम ना बन जाए। हर लड़की तो मैरी कॉम नहीं बन सकती, हर लड़की बॉक्सर नहीं बन सकती, हर लड़की रेसलर नहीं बन सकती, हर लड़की माउंट एवरेस्टर नहीं बन सकती। मैं भी, मेरा साइज भी देखो, जब तक मैंने खूब खेला नहीं, एक्सरसाइज नहीं किया, पढ़ाई टेनिस नहीं खेली, कंपटीशन में, मैं नहीं बराबर बन पाई। और अगर मैं टेनिस स्पोर्ट्स ना खेलती छोटी उम्र में, मैं चैंपियन ना बनती, मैं आईपीएस में नहीं जा सकती थी, मैं बराबरी में ट्रेनिंग कर ही नहीं सकती थी। और मैं क्यों खेल पाई? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे खेलने पर डाला। पहली बात तो मुझे युवा को ये कहना है, लड़का हो या लड़की, प्लीज खेलो, स्पोर्ट्स में भाग दो। बिल्कुल, अगर स्पोर्ट्स में भाग नहीं दोगे आपकी शिक्षा अधूरी। अब तुम पूछोगे, सो विमेंस डे इसलिए मनाया जा रहा है
क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि लड़की और लड़का में अंतर करना बंद करो। क्योंकि अब हमने समाज को, अगर अपने भारतवर्ष को आत्मनिर्भर करना है, तो हमको दोनों शिक्षित, दोनों जिम्मेवार, दोनों बहादुर चाहिए और दोनों स्किल्ड चाहिए। क्योंकि दोनों ने अपनी जिंदगी को अपने चालक करना है। दोनों ने मिलके अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है बड़े होके। दोनों ने मिलके अपने माँ बाप की परवरिश करनी है, उनकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना है। आज आपके माँ बाप आपको पालन पोषण कर रहे हैं, बड़े होके आपने माँ बाप की देखरेख करनी है। तो कैसे करेंगे अगर आप दोनों जिन्हें मिलके लायक नहीं बनेंगे? सिर्फ लड़के पर क्यों जिम्मेवार रहे, लड़की क्यों नहीं भाग दे? एक तो चैलेंज ये, मुझे एक पहला मैसेज ये देना है, विमेन्स डे इसलिए मनाया जा रहा है, ये मैसेज देने कि आधा वर्ग समाज का कमजोर नहीं रह सकता। आधा वर्ग अगर कमजोर रहेगा तो हमारे एक टांग पे रेस नहीं हो सकती। ये एक टांग की रेस नहीं है, ये दोनों टांग पे चलना है। और दोनों के लिए, लड़की हो या लड़का, इसको ये रेस चलानी है। और इसको चलाने के लिए एक बाजू को कह दे नहीं नहीं तू कम रह, तू कमजोर, तू तो कट जानी है, और एक ही चलो, तो फिर आप चीज उठाएंगे कैसे, जिम्मेवारी लेंगे कैसे समाज की? तो पहला बात तो इसलिए विमेन्स डे मनाया जा रहा है, बार बार माँ बाप को भी, समाज को भी, लड़के को भी, लड़की को भी, कि लड़की को भी कहना है मैंने शादी उतनी देर नहीं करनी है जब तक मैं अब कमाऊ नहीं बनूंगी। जब तक मैं कमाऊ नहीं बनूंगी, अपना खर्चा काबिल नहीं बनूंगी, मामी डैडी मैं शादी नहीं करूंगी। क्योंकि मम्मी डैडी भी कल जल्दी होते हैं कि इसकी शादी कर दो क्योंकि भाई की करनी है। ये गलत, सारी चीजें गलत है। ये गलतियों को खटाने के लिए हम लोग ये विमेन्स डे मनाते हैं। माँ बाप को मैसेज देने के लिए, पुरुषों को मैसेज देने के लिए, महिलाओं को देने के लिए। महिलाओं को ये है, मेरा एक मैसेज है, तुम ये ठान लो, पढ़ाई को करो पूरी, साथ में काम काज को सीखो, स्किल डेवलपमेंट सीखो। अब आजकल एनजीओ में, सरकार में, पॉलिटेक्निक में, पंचायतों में, जहां जहां स्किल है, स्कूलों में जहां जहां स्किल है, जाकर सीखो। कोई भी स्किल हो, आपने ये ठान लो कि मैंने बड़े होके अपनी कमाई, अपनी पॉकेट मनी और कमाई करनी है, जैसे मेरा भाई करता है। नंबर 1, तो मुझे भी बराबर बनना है। अगर हम लोग ये समझ जाएंगे तो ये विमेन्स डे का मकसद हम हल होने लगेंगे। विमेन्स डे का दूसरा मकसद ये है, लड़कों को ये मैसेज देना कि हम क्यों विमेन्स डे मना रहे हैं। इसलिए क्योंकि कई लड़के जो गुमराह गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा पर आंच देते हैं। इसलिए लड़कियों को घर बैठा लेते थे ताकि लड़कों से बचाने के लिए, लड़कों को बचाने के लिए लड़की को स्कूल नहीं भेजते, कॉलेज नहीं भेजते, ताकि लड़का उसको छेड़ ना दे। और अगर उसको कोई छेड़ देगा तो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि अफवाह उड़ जाएगी ये तो छेड़ी हुई है। तो ये दूसरा मैसेज है विमेन्स डे का। पहला विमेन्स डे लड़की के लिए, दूसरा मैसेज है लड़के के लिए कि तुमको जिम्मेवारी से बड़े होना है। विमेन्स डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि लड़की को सुरक्षा, तो सुरक्षा के रास्ते में तो पुरुष है। अरे लड़की थोड़ी लड़की को छेड़ती है, लड़की को छेड़ती है कोई लड़की, लड़का छेड़ता है। और लड़के के मम्मी डैडी नहीं है क्या, लड़के के टीचर नहीं है क्या, वो क्यों नहीं उसको समझदार बनाते? मान लीजिए कोई लड़का छेड़ता है लड़की को और उसके मम्मी डैडी और स्कूल का नाम भी अखबार में आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? बताइए, बताइए आप लड़कों बताइए। अगर मम्मी डैडी, अगर लड़की को छेड़ा गया और लड़के के स्कूल का नाम भी आ गया अखबार में कि इस स्कूल से पढ़ा था, और उसके टीचर का नाम भी आ गया कि इस टीचर से पढ़ा था, और साथ में किस माँ बाप का है वो भी आ जाएगा, गांव का तो नाम आ जाता है कि इस गांव का है, गांव का नाम बदनाम नहीं होता? जब कोई लड़का छेड़ा हुआ गांव का नाम आता है तो वो उसको कुछ खुशी देता है? सारे गांव की निंदा होती है। सो सेकंड ये है कि ये हमारे लड़के और लड़कियां को जिम्मेवारी है, लड़की की जिम्मेवारी है, मुझे भी बड़े होके अपने पांव पे खड़े होना है, मैंने किसी पर निर्भर नहीं करना है, मैंने अगर अपना घर चलाना है तो मैं भी अपना पूरा हिस्सेदार बनूंगी। और लड़का का ये है, बड़े होके मैंने भी कमाना है
और अपने घर को, अपने परिवार की परवरिश भी करनी है और अपने भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ भी ले जाना है। सो लड़की हो या लड़का, दोनों मिलके लायक बने और भारतवर्ष को आत्मनिर्भरता की तरफ चले। आपको पता है, अगर लड़की भी कमाने लग जाए 100%, भारतवर्ष अमीर हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। हमारी गरीबी का मुख्य राज ये भी है क्योंकि हमारी जो आज 10% औरत या 20% औरत काम करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कई जगह तो बहुत ही अच्छा काम करती है। मैं पौंडीचेरी से अभी 5 साल काट के आई हूं। पौंडीचेरी की सारी इकोनॉमी, जो ग्रास रूट इकोनॉमी, सारी महिलाएं संभालती हैं। बहुत सारी परसेंटेज पौंडीचेरी की दुख की वजह से परेशान है कि वो शराब पीती है, वो शराब पे पैसा खर्च देती। आदमी लोग, काफी सारे बच्चों के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसके डैडी शराब पीते। मां मेहनत करती है, मां सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहती है, मां मनरेगा में जाती है, मां गांव में काम करती है, मां नर्सरी कराती है, मां सब्जी लगाती है, मां ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री करती है और वो घर चलाती है। क्योंकि स्कूल फ्री है, सारा स्कूल फ्री, खाना फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, किताबें फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, बस भी फ्री। तो पिता लोग समझते हैं सरकार का काम है। लेकिन माँ और मम्मी डैडी घर में है ही नहीं बच्चे को समझाने के लिए कुछ। सो लड़के कई आवारा ड्रॉप आउट हो जाते हैं और ड्रॉप आउट होकर राउडी बन जाते हैं, कोई ना कोई गंदी पॉलिटिकल ग्रुप में जुड़ जाते हैं, वहां से कमाने लगते हैं। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। अगर हमने इसको बदलना है तो ये विमेंस डे का मतलब ही यही है, हर युवा अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाले। इस देश में अगर हर लड़का रक्षक बने, तो मुझे ये बताओ कभी कोई लड़की छेड़ जाएगी? हमारे देश में बाद में नाम बदनाम कभी होगा? हमें कहा जाता है दिल्ली, इंडिया इज द अनसेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। ये कहा जाता है भारतवर्ष ना महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और जब हम लोगों को कहा जाता है कि भारतवर्ष में महिलाएं सेफ नहीं है, तो बताइए कौन लोग ने जो लड़की को चढ़ते? पुरुष लोग। तो बदनामी तो होगी ना युवाओं की। हर युवा की बदनामी नहीं होगी? तुम नहीं छेड़ते, तुम्हारा दोस्त छेड़ता है, तुमको दोस्त को ठोकना चाहिए। तुमने ये लड़की को क्यों छेड़ा? क्यों तुमने कसा कुछ? सो अब समझिए, विमेंस डे का मनाने का मतलब है 2-3 मैसेजेस। एक तो पेरेंट्स को कि अपनी लड़की और लड़के को बराबर। दूसरा, दहेज बंद करो, दहेज लेना और देना बंद करो, ये महापाप है। इसलिए भी लड़की को बचा के रखते पढ़ाई से कि ऐसे पैसे बचा लो और उसकी शादी करनी। शादी के लिए वो लड़की का जीवन कुर्बान कर देते। लड़के के जन्म में और छोटी उम्र की लड़की से बच्चे जमा देते हैं। सो ये समाज बदल रहा है। ये समाज ये नहीं कि नहीं बदल रहा। अब हमारी लड़कियों की प्रोपोर्शन वापस ठीक हुई है। पहले लड़कियों की प्रोपोर्शन गिरती जा रही थी, पर 1000 पर महिलाएं 800 हो गई थी, अब तो वापस आ गई 900 से भी आगे। तो हमारी तुलना बेटर हो गई क्योंकि इतने सारे अभियान लगे, लड़की बचाओ, बेटा बचाओ, सब कुछ, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, आते रहे मैसेजेस कामयाब हुए। उसमें एनजीओ ने बहुत रोल प्ले किया, सरकार ने रोल प्ले किया, एनजीओ ने प्ले रोल किया, पेरेंट्स ने भी अपना योगदान दिया, तो बच के आ गए। अब ये सुधार हो गया, लेकिन बहुत सुधार करना है। तो मुझे यही कहना है, हमने विमेंस डे इसलिए मनाया है ताकि तीनों जने, माँ बाप भी अपनी बेटी को, attendance link not applicable for today. So मैं ये कह रही थी कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपने बेटों को जिम्मेवार बनाओ और आगे दहेज लेने और मांगने बंद करो। इज इट ओके? थोड़ा सा पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन। और एक लास्ट बहुत बात कहनी, फिर आप अपना प्रश्न जो पूछना पूछ लीजिए, तो मेरे पास 5 मिनट और है। वो ये कि अब स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें स्किल डेवलपमेंट है। इसको शेप करते हुए समय लगेगा, लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है कि हर युवा कोई ना कोई स्किल सीखे।
पढ़ाई के साथ सीखे, चाहे वो काम छोटा हो या मोटा इस वक्त नहीं है। आप काम करना सीखिए, कोशिश करिए अपनी अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए, चाहे ट्यूशन दीजिए, चाहे गांव में काम करिए, चाहे खेत में काम करिए या दुकान पे। ये एक्सपीरियंस है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर आप ये इंटर्नशिप भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग इसको इंटर्नशिप भी कहते हैं। जैसे भी है, अगर मम्मी डैडी काम करते दुकान पे, जाओ उनके दुकान पे सैटरडे संडे को बैठो और देखो क्या करते हैं, मम्मी डैडी का हाथ बटाओ, आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। इस वक्त समय है छोटी उम्र में पढ़ना और सीखना, पढ़ना और सीखना, छेड़ना नहीं, पढ़ना और सीखना और अपनी जेब खर्च कमाना। अगर आप ये करने लगेंगे तो आप आगे लायक बनते जाएंगे, कमाते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होने लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा आपको अच्छा क्या लगता है। और टेक्नोलॉजी को 100% सीखो, टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं मिलेगा आपको कोई। जहां कंप्यूटर है उसको सीखो। कंप्यूटर के बिना आजकल की एजुकेशन अधूरी है। सो कंप्यूटर सीखो, मैंने आपको रिक्वेस्ट की, बराबरी की परवरिश करो, अपने आप को जिम्मेवार बनाओ, माँ बाप के साथ हमेशा रात को खाना खाओ, आवारागर्दी करनी बंद करो, शाम को दोस्त नहीं, स्कूल में दोस्त, पढ़ाने में को, शाम को माँ बाप के साथ बैठ के भोजन लो, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। अगर सारे जने माँ बाप के साथ शाम को भोजन लेने लगे, सारा परिवार इकट्ठा बैठने लगे, देखो कितना फर्क पड़ेगा। ना कि भाई है ही नहीं, भाई कहाँ दोस्तों में, अरे लुढ़क के आ रहा है, लड़ाई करके झगड़े कर रहा है, ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। हमने लड़के ऐसे इसलिए थोड़ी पैदा किए जो आपके माँ बाप को धमकी दे, अगर मुझे नहीं दोगे पैसा, अगर मुझे ये नहीं करोगे मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे जाना तो जाओ, रुलोगे तुम, बर्बाद होगे तुम। सो ये नहीं बात। सो अगर हम लोग विश्व युवक केंद्र, ये युवक केंद्र है, इसमें सही शिक्षा लेके जानी है तो मेरी नजर में यही है, लड़की को भी बहादुर बनाओ, लड़के को भी बहादुर, लड़की को भी जिम्मेवार बनाओ, लड़के को भी जिम्मेवार, लड़की को भी शिक्षित करो और कामकाजी से बनाओ लड़की को, और लड़की की शादी बिना कामकाज की अपनी पॉकेट में नहीं मानो। मैं एक बात कह के जाना चाहती हूँ कि इसमें टीचर्स का रोल और एनजीओ का रोल अहम है। या हर टीचर्स की जिम्मेवारी ले कि मेरा स्टूडेंट कोई गड़बड़ नहीं करे, और हर एनजीओ अपने को, मैं भी एनजीओ में जानती हूँ एनजीओ कितना ज्यादा एम्पावर करते हैं, एनजीओ का बड़ा असर होता है। सो एनजीओ का बड़ा महत्व है, और सिमिलरली टीचर्स का, और टीचर्स में से ज्यादा महिलाएं हैं। सो महिलाएं माँ का रोल प्ले करें, पुरुष टीचर फादर का रोल प्ले करें, फिर देखिए समाज बहुत सुधर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ओके So, Namaskar, and I'm thankful to Vishwa Yuva Kendra and for inviting me for this event on International Women's Day. तो मैं पढ़ी बली मुंबई में, और मेरी पढ़ाई मैं यूनिवर्सिटी में जब थी तब पढ़ रही थी, तब मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ी, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किए। और उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में जाके सब विद्यार्थियों को बोलते थे कि गांव लोगों को, तरुण पीढ़ी को गांव में काम करना चाहिए, जिससे मैं बहुत प्रेरित हुई और मैंने तय किया कि क्यों नहीं मैं इस आंदोलन से जुड़ूं, और मैं जुड़ गई। और उस वक्त जो गांधीयन नेता थे वो गांव में काम करते थे, तो मैं उनके साथ गांव में काम करने की शुरुआत की, और मैं काफी उससे प्रभावित हुई, और मुझे ऐसा भी लगने लगा कि मैं मुंबई छोड़ के गांव में क्यों नहीं काम करूं। तो मैं ये काम कर रही थी, मेरे पति विजय सिन्हा जो गांव में ही रहते हैं और खुद ये आंदोलन से भी जुड़े थे, तो हम लोगों ने तय किया, मैं प्रेम हुआ और शादी की, और मैं मुंबई छोड़ के सातारा जिले के मसवड़ छोटे से गांव में, जो छोटा सा शहर है पर काफी दूर दराजों में वहां गांव है, वहां मैं रहने लगी। तो वहां मेरे पास बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो सब्जी बेचती हैं, जो कुछ हथियार छोटे छोटे खेती में लगने वाले बेचती हैं, वो महिलाएं कहने लगी कि हमको बचत करनी है। तो मेरा सवाल उन महिलाओं से ये था कि भाई आपको बचत करनी है, लेकिन आप तो रास्ते पे सब्जी बेचती हो, तो क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप बचत कर पाए? लेकिन ये महिलाओं ने कहा कि हम रास्ते पे सब व्यवसाय करते हैं,
बिजनेस करते हैं, हम धूप में बैठते हैं, बारिश में बैठते हैं, हमको तो छत चाहिए, और वो खरीदना है, अगर टारपोलिन शीट और छत भी खरीदना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, और ये पैसा हमको एक दिन में नहीं मिलता है। तो हम बचाएंगे और वो खरीदेंगे और फिर अपना व्यवसाय करेंगे। मुझे लगा ये महिलाएं कोई बड़ी चीज नहीं मांग रही हैं, ये तो मौका मांग रही है बचत करने का। तो क्यों नहीं मैं उन महिलाओं के साथ बैंक में गई, लेकिन बैंकों ने मना किया। बैंकों ने कहा कि इनकी इतनी छोटी बचत है कि हम उनका खाता नहीं खोल सकते। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया क्यों नहीं इन महिलाओं के लिए बैंक शुरू की जाए, और हमने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया। आपको आश्चर्य लगेगा, हजारों महिलाएं जिन्होंने मेंबर कैपिटल जमा किया और वो बैंकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और ये जो महिलाएं हैं उन्होंने कि हमारी बैंक को हम बचत करें, इसके लिए वो आगे आई। और ये जब महिलाएं, हम लोगों ने रिजर्व बैंक में जब ये हमारा प्रपोजल गया तो उसको नकारा गया। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी सिग्नेचर की जगह पे अंगूठा है। तो मैं बहुत नर्वस हो गई, लेकिन हमारी महिलाएं नहीं। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर हमको तो गिनती आती है, और हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सीखेंगे। और हमारे लिटरेसी क्लासेस शुरू हुए। ये मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। और हमारी महिलाएं पढ़ना लिखना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद मैं फिर रिजर्व बैंक गई, लेकिन मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ करीबन 15 महिलाएं आरबीआई में आई, और उन्होंने आरबीआई के अफसरों को कहा कि आपने लाइसेंस नकारा क्योंकि हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। पर हम, उन महिलाओं ने कहा कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है पर हमको गिनती आती है। और इन्होंने कहा कि हमें कोई भी, अफसरों को उन्होंने चैलेंज दिया महिलाओं ने कि हमें कोई भी गिनती कहिए, हम आपको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट गिन के बता सकते हैं, और आपके अफसरों को कहिए कि वो ये गिनती करके दिखाएं, और कौन जल्दी गिनती करता है आपके अफसरों से कैलकुलेटर ले लीजिए। ये जब चुनौती दी गई तब हमारी महिलाओं के साथ रिजर्व बैंक के ऑफिसरों ने बात की, और मुझे बहुत अभिमान से मैं आज कह रही हूँ कि हमें ये लाइसेंस मिला। और इतना ही नहीं, आज ये देश की पहली ऐसी महिला बैंक है कि जिसने डिजिटल बैंकिंग शुरू की है। हमारी महिलाएं, हम लोग बैंक तो है ही, डोर स्टेप बैंकिंग भी है, हम लोग रेडियो भी चलाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये महिलाएं रेडियो कैसे चलाती हैं। तो ये ग्रामीण इलाके की महिलाएं, जिनको फिर मैं कहती हूँ कि वो जब हमारे यहाँ अकाल हुआ था तो हमारे यहाँ जो एक रेडियो जॉकी मानी जाती है, आप उनका यूट्यूब पे देखेंगी तो आपको वो जरूर दिखेंगी, रेडियो जॉकी केराबाई। तो इस तरीके के स्टार्स आज हमारे देश में गांव में हैं, और मैं इन महिलाओं से बहुत सीखी हूँ। और मैं जाते जाते ये भी बताती हूँ कि ये सब में हमारी तरुण पीढ़ी भी कम नहीं है। छोटी बच्चियां आती हैं बैंक में और कहती हैं, दीदी हमें स्कूल जाना है, हाई स्कूल जाना है, बस नहीं आती है हमारे गांव, हमें अगर साइकिल भी मिल जाती है ना, हमें इतना सा काम दे दो 2 महीने का, और पगार मत दो, हमको साइकिल दे दो, अगर साइकिल मिलेगी तो हम स्कूल में साइकिल से चले जाएंगे। ये इतनी सादी सी बात है। मुझे बहुत अभिमान होता है कि मानदेशी ने करीबन 10,000 से ज्यादा लड़कियों को साइकिल दिलवाई है, वो आगे पढ़ी है। उतना ही नहीं, ये लड़कियां सब पढ़ती ही नहीं है, पर वो साइकिल की वजह से अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकती है। और काजल जो खेत में बच्चे संभालती थी, वो अभी हरियाणा में प्रैक्टिस कर रही है और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयारी कर रही है। और ये इनकी जाति भी जनजातियों में से आती है। तो ऐसी महिलाएं हैं। और जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगी कि इन महिलाओं से मैंने क्या सीखा है। जैसे आपने मेरी पहचान कराते हुए वक्त कहा ना कि माय करेज इज माय कैपिटल, ये जो शब्द है कि मेरा करेज ये मेरी पूंजी है, ये मैंने महिलाओं से कैसे सीखा। जब हमारी बैंक प्रॉफिट करने लगी तो हमने कहा कि हमारी पहली ग्रामीण महिला बैंक है, महिलाओं को तो डिविडेंड देना चाहिए, और हमने तय भी किया। लेकिन हमारी महिलाओं ने कहा कि एक बार हम डिविडेंड लेंगे भी तो
खुश भी होंगे सब लोग, लेकिन हमारी संस्था को भी मजबूत होना चाहिए ना। तो उन्होंने अपना डिविडेंड संस्था के रिजर्व्स में डाला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। और मैं आज महिला दिन पे सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, गांव में रहती हैं, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन वो डिजिटल बैंकिंग में आगे हैं। हमारा मानदेशी ebazaar.com है, उस पे वो व्यवसाय करती हैं, वो व्हाट्सएप बिजनेस पे अपना बिजनेस करती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेंडेमिक के वक्त आप अगर खेती के बारे में जानते हैं, आपने बताया कि हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरू की, तो हमारी महिलाएं जब जानवर के मार्केट नहीं भरते थे क्योंकि सब कुछ बंद था, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे एनिमल मार्केट और अरेंज किया। और जो छोटे छोटे बकरी बेचने वाली महिलाएं, उन्होंने वहां से अपनी बकरी बेचने के लिए ग्राहक ढूंढे और वो खुद चलाती हैं। और उतना ही नहीं, पर जो स्किलिंग की बात होती है, तो बहुत बार जब हम महिलाओं की और स्किलिंग की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं फैशन, फूड और टेक्सटाइल, राइट। तो लेकिन उतना हमारी महिलाएं तो पैरावेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गोट डॉक्टर्स हैं, और वो इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन जानवरों में करती हैं। और आपको पता है हमारे बैंक के एटीएम में महिलाएं महिला पुरुष सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दूसरे बैंक के एटीएम में 500 का नोट निकलता है, मानदेशी बैंक के एटीएम में 50 रुपए का नोट निकलता है, 10 रुपए का निकलता है, 20 रुपए का निकलता है। और हमारी महिलाएं कहती हैं कि अगर 500 निकालेंगे तो खर्च हो जाएगा, लेकिन 10-20 रुपए निकालेंगे तो नहीं होगा। इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 500 की नोटें डालना आसान हो जाता है, तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ये सबको कहना है, और मुझे सब महिलाओं से और पुरुष से और जाते जाते ये बताना है कि 8 दिन पहले मैं बैंक में अंदर आ रही थी, तो एक किसान करीबन 70 साल के ऊपर के होंगे, और उन्होंने ना, मैं वो फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, मेरे साथ जो कांटेक्ट करते हैं उनको आप सोशल मीडिया पे ये कर सकते हैं। उन्होंने हमारे बैंक में पैसा रखा, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि बाबा आपने आज बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है कि अरे बिटिया, मैंने पैसा इसलिए रखा क्योंकि आप लोगों ने अकाल के वक्त जानवरों को जिंदा रखने के लिए कैटल कैंप चलाया था, और हमने कैटल कैंप चलाया था जिसमें 14,000 जानवर 1.5 साल तक रहे थे। लोग बहुत बातें करते हैं, पर इतना आसान नहीं है ना, जब किसान को जानवर बेचना पड़े तो नहीं बेचते हैं किसान। तो 14,000 जानवर मानदेशी ने इन किसानों को रहने की व्यवस्था की और संभाले थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो आज मेरे पास पैसे आए तो मैंने आपके ही बैंक में खाता खोला और पैसा रखा, और उन्होंने कहा मैंने अपनी पत्नी के नाम पे पैसा रखा है। देखिए किसान जो कितने कष्ट से पैसे कमाते हैं, इतना आसान नहीं रहता है किसानों के पास पैसा रहना। हम लोगों ने सुना है ना कितना कर्जा हो जाता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी के पास पैसा रखा, और मैंने बहुत उनको कहा, खुश हुई, मैंने चाय पिलाई। लेकिन मैंने उनको जाते वक्त देखा तो मैंने देखा कि उनके पैर में चप्पल नहीं थी, उनके पैर में चप्पल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया बैंक के अंदर। कितनी बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे आज महिला दिन के दिन मैं ऐसे भाइयों को याद करती हूँ, ऐसे पिताओं को याद करती हूँ, ऐसे बेटों को याद करती हूँ कि जो अपने पैर में झुर्रियां पड़ी हो जाए और धूप में चलना पड़े तो भी हर्ज नहीं, पर अपनी बिटिया, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी की सुरक्षा करे। तो इस बात पे मुझे आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे, आप जरूर हमें विजिट कीजिए, मानदेशी को देखने के लिए आइए और देखिए महिलाएं कैसे बैंक चलाती हैं, डिजिटल बैंकिंग करती हैं। बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। तो अगर मैं नारी की बात करूं, नारी के आत्मविश्वास की, नारी के पूर्ण समर्पण की बात करूं, तो नारी हर तरीके से कोशिश करती है एक समाज को अच्छे तरीके से सबल बनाने की। So if we must celebrate a day for women,
Let us celebrate freedom from stereotypes, from expectations, from idealization, and from sacrifice. It is critical that we continue to engage men and boys actively in the fight against gender-based discrimination and violence. We have an opportunity to secure a better future and raise a new generation of girls and boys who respect one another and work together to protect the rights of all people. As you all know, today Ranjana ma'am has joined. She has devoted herself for promoting women empowerment and fighting female feticides, and has been actively involved in social development. So in her address, she has addressed us on economic empowerment and women health, how we can give emphasis to restore women's health, not only physical health, but also mental health. Thank you so very much, ma'am. And after that, we heard from Dr. Didi, Dr. Kshama Maitre, ma'am. She spoken on equal access to quality education and how women could participate in administration also, and in each and every aspect for social development. And her vast experience of working with women and the youth reflected in our address, and which I believe was a great learning experience for all of us. And after that, Chetna ma'am has addressed us. She has shared her experience, which is truly an eye-opener for all of us. Her endeavor was a particularly tough one, but the story of her grit and determination is evident for everyone to see in the great success that Mandeshi Bank enjoys today. And what should I say about Kiran Bedi ma'am? She is a role model and she inspires many young girls and women. I'm sure that most of women and IPS officer consider Kiran ma'am as the role model, which is inspiring and aspect for each and every girl, and to reach a level where we can find and we can create a जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी फॉर बोथ. एंड जैसे कि उन्होंने भी बोला कि युवाओं को अपनी जिम्मेदारी संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उन्हें कंप्यूटर लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी की बहुत जरूरत है. उन्हीं के शब्दों में एक कोट आपके सामने रखना चाहूंगी. यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, you educate the whole generation, the entire generation. And Kiran ma'am, Dr. Kshama Maitre ma'am, Ranjana ma'am, Chetna ma'am, all of you are living experiences of what a woman can achieve if she is determined. You all are true role models, and I'm sure that all our participants who had the opportunity to listen to you today will surely take inspiration from your experiences and would ingrain today's learning in their lives and try to put in their best possible efforts to achieve our objective of a gender neutral society for a sustainable tomorrow. Thank you so very much to all of you for your precious time from the bottom of my heart, and from all of us. थैंक यू सो वेरी मच. और आज मैं सभी अपने जितने भी श्रोतागण हैं उनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ, और आप सभी से ये आग्रह करूंगी कि आप सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक औरत और एक आदमी के इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके समाज कल्याण में बेहतरी के लिए साथ में योगदान दें, तो हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू अपूर्वा. ओवर टू यू. सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ है उसके लिए तो पूरी VYK की टीम और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उसके लिए तारीफ के काबिल हैं ही, शुक्रिया के वो है ही हकदार. लेकिन मैं शुरुआत करता हूं हमारी जो चीफ गेस्ट हैं किरण बेदी मैम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखी कि क्यों हम ये इंटरनेशनल वुमेन डे या वुमेन डे क्यों मनाते हैं, जरूरत क्या है इसकी. जरूरत इसीलिए है कि ना केवल महिलाएं इस बात पे ध्यान दें कि हमें आगे बढ़ना है, साथ ही साथ पुरुष भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने प्रोटेक्टिव वे के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करनी है. तो इतनी ही इंस्पायरिंग चीजों के लिए, इतने इंस्पायरिंग थॉट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर किरण बेदी मैम का, जो कि हमारी पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं पांडिचेरी की. दूसरी हमारी जो
ऑनरेबल स्पीकर हैं डॉक्टर रंजना कुमारी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से पहले हम महिलाओं को बहुत कमजोर समझते थे, लेकिन आज के समय में न केवल महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बल्कि वो बहुत सारी जगह सुरक्षा कर्मी के तौर पर लोगों की और दूसरे लोगों की भी सुरक्षा कर रही है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी कड़ी के अंदर आगे हमारे पद्मश्री क्षमा मैत्री जी हैं, जिनको हम दीदी के नाम से भी जानते हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात की कि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि महिलाएं भी अपनी पूरी डिग्निटी के साथ हर सेक्टर के अंदर आगे बढ़ सके। हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप कोई भी दुनिया का सेक्टर चले जाइए, हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व के अंदर हर महिलाएं जो है हर क्षेत्र के अंदर बहुत आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को प्रूव कर रही हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर क्षमा मित्र मैम का। और फाइनली चेतना जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा बताई, किस तरह से उन्होंने बैंक खोला महिलाओं के लिए, स्पेशली ऐसी महिलाओं के लिए जो कि पढ़ना नहीं जानती थी, अंगूठे से काम करती थी। तो बहुत ही इंस्पायरिंग मतलब उनका पूरा का पूरा लाइफ रही है। और वो जैसे अपूर्वा जी ने बोला कि उन्होंने ना केवल ये काम किए हैं बल्कि वो पूरी लाइफ जी है उन्होंने। तो थैंक यू मैम, चेतना मैम। और फाइनली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भी हमारे फील्ड पार्टनर्स हैं, जिनके साथ मिलकर के हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे, जैसे आनंद जी ने फोटो भी दिखाए हैं, उनका वीडियो भी दिखाया है, उन सबका मैं चाहूंगा कि करके नाम मैं ले लूं। तो सबसे पहले मैं उसी क्रम के अंदर बढ़ता हूं। जनहित छत्तीसगढ़ विकास समिति छत्तीसगढ़ से, शौर्य शक्ति फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, युवा विकास समिति, रुद्र रक्षा फाउंडेशन, सावित्री विद्या विहार, सलारदित्य ग्राम विकास सेवा संस्थान, डॉन बॉस्को स्कूल, PSVM हाई स्कूल, बेगम खेर गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंडल हरियाणा, सबला फ्रॉम कर्नाटका, अंत्योदय चेतना मंडल बिहार, प्रेम यूथ फाउंडेशन एंड डेफोलिसिस पब्लिक स्कूल एंड शिवम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज बिहार, श्री अकलेंद्रेश्वरी वुमेन कॉलेज तमिलनाडु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट IISD, लोक शक्ति विकास केंद्र गवर्नमेंट घाटीपारा हाई स्कूल बालीपाड़ा ओडिशा, सामर्थ्य सेवा संस्थान राजस्थान, सहयोग उड़ीसा, डलियों की डगरिया उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर इक्विटी एक्शन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, दहिंग कॉलेज एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय असम, अभियान फ्रॉम बिहार, मंथन युवा संस्थान, रांची प्रेस क्लब, लिव फाउंडेशन एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, विकासना इंस्टीट्यूट फॉर रूरल अर्बन डेवलपमेंट कर्नाटका, ओएसका इंटरनेशनल साउथ इंडिया चैप्टर एंड मर्सी कॉलेज केरला, वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति एंड ग्राम पंचायत कैलाश हिमाचल प्रदेश, चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट कॉर्ड फ्रॉम हिमाचल। और अंत में जो भी हमारे पार्टनर, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने फील्ड एक्टिविटी नहीं की, लेकिन जो हमारे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की जान रहे, बढ़ चढ़ के उन्होंने समय समय पर इसमें पार्टिसिपेट किया और अब हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में मदद की, मैं उन सब का बहुत ही तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.